Hello students, how are you all? So once again I welcome you all in this online class, and today we are going to start a new topic, that is accounting treatment of reserve, accumulated profit and loss. And we are continuing the second chapter, that is reconstitution of partnership. Till last video we have discussed that at the time of reconstitution how sacrificing ratio will be calculated, how new ratio and gaining ratio will be calculated. Then after we had gone through the methods of valuation of goodwill, that there were three methods: average profit method, super profit method and capitalization method of goodwill. After completion of that methods, in last video we had studied about accounting treatment of goodwill, that how goodwill will be recorded in the books of accounting of partnership firm at the time of reconstitution. So at the time of reconstitution there will be requirement for accounting treatment of reserves or accumulated profits and losses which have been already given in the balance sheet of the partnership firm. ठीक है? If at the time of reconstitution of partnership, if there is an profit amount, if at the time of reconstitution of partnership or reconstitution of agreement, if there is an so today's topic is, so after finishing all that topics, now we are going to start this fresh topic, and in this topic we will see that if at the time of reconstitution, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, reconstitution of partnership form means when the existing partners will change their profit sharing ratio, then in that case there may be some partner who can suffer loss in compared to their previous profit portion, and some of the partners can get gain from the another partner who are sacrificing. तो इस तरीके से जब किसी पार्टनर को रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे या न्यू एग्रीमेंट करने पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने में अगर किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है, किसी पार्टनर को गेन होता है, तो उस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर का हम क्या करते हैं, सबसे पहले शेयर निकाल लेते हैं कि कितना शेयर हुआ. उसके बाद हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. उस पर्टिकुलर गुडविल के अमाउंट में से जिस पार्टनर को जितना शेयर ऑफ गेन होता है उतने से उसको क्रेडिट, उतने से डेबिट किया जाता है, और जिस पार्टनर को जितना शेयर ऑफ लॉस होता है उससे उसका कैपिटल अकाउंट उतना क्रेडिट कर दिया जाता है. ये सारे का सारा हमने लास्ट वीडियो में देखा. इसी तरीके से रिजर्व है. अब इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या रिजर्व को, इसमें हमको क्या पढ़ना है या कैसे, कितने मेथड्स होते हैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है? If there are two partners, A and B, their profit, their PSR was equal. That means they were distributing profit and losses in the ratio of 1:1. And after some time, they decided to change their PSR. And what they have decided to have new PSR, it was decided that now they will distribute the profit in the ratio of 3:2. ठीक है? Earlier they were distributing in equal ratio, but now A will get more profit in compared to B. Now this is the new PSR agreed by both the partners. In that case, if there is a profit amount in business, or I can say that profit ले लो, या इसी तरीके से मान लो जनरल रिजर्व है. General reserve is what? General reserve, it is the part of retained earning. ठीक है? And it is related to owners. That is why it is internal liability for the partnership firm. Means if there will not be requirement of this general reserve in the business, then ultimately it will be given back to the owners. अब जब ओनर को भी दिया जाएगा, सपोज यहाँ पे दिया हुआ था 1 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व है. अब 1 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व जो हुआ, यानी पहले इनका रेशियो क्या था, इक्वल रेशियो था. जब उनका इक्वल रेशियो था उस टाइम के प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके जनरल रिजर्व बनाया गया था 1 लाख रुपीज. अब
जब पार्टनर ये चाह रहे हैं कि अब हमारा पीएसआर चेंज कर दिया जाए, तो जिस दिन पीएसआर चेंज करेंगे, ठीक है, अब पीएसआर क्या हो रहा है, 3:2 हो रहा है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो जब पीएसआर चेंज होगा, जनरल रिजर्व फॉर्म में कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपीज, ठीक। अब जब पीएसआर चेंज होगा तो 3:2 हो जाएगा, यानी अगर फ्यूचर की डेट पे, चूंकि पीएसआर आज चेंज होगा, अब जनरल रिजर्व वैसे ही बुक में पड़ा रहेगा, तो कभी न कभी जाकर के, जब मैंने बताया कि इस जनरल रिजर्व की फॉर्म को जरूरत नहीं होगी, फॉर्म को लगेगा कि पैसे की जरूरत नहीं है, इसको वापस से ओनर को दिया जाए, तो जब फ्यूचर में जब ओनर को देंगे तो 1 लाख रुपीज को किस रेशियो में देंगे, उस टाइम का जो पीएसआर होगा, जिस टाइम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, उस टाइम का जो पीएसआर होगा उसी में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर पीएसआर चेंज कर दिया गया है तो फ्यूचर में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को कितना मिलेगा, ये रेशियो कितना हो रहा है, 3/5, 2/5, तो ए का जो प्रॉफिट बनेगा, इज प्रॉफिट इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसी 1 लाख का कितना मिलेगा इसको, 3/5, तो इसको मिल जाएगा 60,000। इसी तरीके से बी शेयर इन फ्यूचर और बीस प्रॉफिट इन फ्यूचर, उसी रिजर्व में से 1 लाख रुपीज के रिजर्व में से इसको कितना उस टाइम का उसका रेशियो रहेगा, 2/5, यानी 60,000 रुपीज विल बी गिवन to A and 40,000 will be given to B when there will be change in the ratio. बट ये कि यहाँ पे क्या करेगा, B ऑब्जेक्शन कर सकता है। B ऑब्जेक्शन ये करेगा कि ये कौन सी बात हुई, ये तो प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का या रिजर्व, जनरल रिजर्व उस टाइम बनाया गया जब हम इक्वल पार्टनर थे, तो जब ये 1 लाख रुपीज बटेगा तो इक्वल मिलना चाहिए, मुझे भी 50,000 मिलना चाहिए, ए को भी 50,000 मिलना चाहिए। यही है जेन्युइन, यही दिख रहा है, क्योंकि जनरल रिजर्व किस टाइम निकाला गया, जब इनका पीएसआर इक्वल था, तब ये उस टाइम के प्रॉफिट में से अगर निकाला गया है तो वापस अगर दिया जाएगा तो इक्वल ही देना चाहिए, इक्वल देना चाहिए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन बी ने कर दिया, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होता है, इसके लिए 2 ऑप्शन होता है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हमको पढ़ना क्या है। इसके लिए 2 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होता है कि जिस दिन ये पीएसआर चेंज कर रहे हैं उस दिन तक फर्म की बुक में अगर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को पहले उसी ओल्ड रेशियो में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे, यानी फर्म में जो जनरल रिजर्व दिख रहा है, जनरल रिजर्व को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उसी डेट पर जिस दिन ये पीएसआर चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि उनका ओल्ड रेशियो 1:1 था। 50,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करके जनरल रिजर्व बुक से खत्म कर देंगे, न रहेगा न फ्यूचर में बटेगा, और फ्यूचर में बटेगा नहीं तो फिर कम ज्यादा का चांस नहीं होगा। ये तो पहला मेथड हुआ। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, यही हमको पढ़ना है। व्हेन लिखेंगे, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि जब रिजर्व या इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस जो भी हमें दिख रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि मैंने कहा कि अभी पीएसआर चेंज करते टाइम ये क्या कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा उसी टाइम पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकता है, ठीक है ना। व्हेन प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स आर टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बुक्स, ठीक है ना, मतलब खत्म करना है। जब प्रॉफिट लॉस या रिजर्व जो बुक में दिख रहा है उसको खत्म करना है, खत्म मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कुछ भी दिया हो सकता है, हमारा तरीका यही है, ठीक है ना। ये यानी पहला ऑप्शन ये है। तो उस केस में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, इसकी जर्नल एंट्री, इस मेथड की मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ कि उस केस में अगर कोई प्रॉफिट है, अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट में क्या क्या दिया हो सकता है, प्रॉफिट में आ सकता है, प्रॉफिट के इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखें ये हमारा आएगा क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब डेबिट साइड बड़ा होता है तो क्या आता है, नेट लॉस होता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, मींस जो क्रेडिट साइड बड़ा वाला है, मतलब प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से हमारा दिया हो सकता है जनरल रिजर्व। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दिया हो सकता है रिजर्व फंड। ठीक है, रिजर्व फंड। इसी तरीके से हमारा दिया हो सकता है वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व, यानी स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व भी हो सकता है, ये फंड भी हो सकता है, वर्कमेन कंपनसेशन रिजर्व और फंड। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, ये भी स्पेसिफिक रिजर्व है, क्लास 11 में पढ़ चुके हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड, मतलब दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ समवेयर रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है ना, दे ऑल विल बी टेकन आउट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अब जब इन सारे चीज को निकाल करके रखा जाता है तो ये सबके सब क्या है, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, बिल्कुल कैपिटल की तरीके से, क्योंकि यूज नहीं होगा तो बाद में वापस किया जाएगा। अब मैंने बताया कि जब इंटरनल लायबिलिटी है तो इंटरनल लायबिलिटी है तो हमें, अगर मान लो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना करके दिया हुआ है, मान लो ए और बी का जिस डेट पे पीएसआर चेंज कर रहे हैं उस डेट का उनका पूरा बुक का बैलेंस शीट बना करके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाकर भी दे सकता है क्वेश्चन और ऐसे भी जनरली इन्फॉर्मेशन दे के भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर बैलेंस शीट बना करके दिया होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, लायबिलिटीज साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड में। इसी तरीके से अब लायबिलिटी साइड में ये सारा कुछ है, इसी में से मैंने एक एग्जांपल लिया जनरल रिजर्व। ठीक है, अब मैंने बताया कि जनरल रिजर्व जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहला मेथड क्या है कि जब हमें कहे कि पीएसआर चेंज करने की डेट पे ही क्या करना है, जो भी पुराना उन लोग का रिजर्व आपस में जो पुराना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, बेटर होगा कि उसको पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ताकि फ्यूचर में जब पीएसआर चेंज होगा तो उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम न हो या कोई किसी तरीके का डिस्प्यूट न हो। तो उसके लिए जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जर्नल एंट्री देख लो क्या होगा, यानी इस मेथड में अगर ये मेथड हमें यूज करना होगा तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जर्नल एंट्री पास करना होगा, वही हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जर्नल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, हमारी जनरल एंट्री होगी जितने प्रॉफिट्स हैं, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सबसे पहले ये हम देखते हैं क्वेश्चन जनरल एंट्री, चलो जनरल एंट्री लिख करके मैं समझा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसी तरीके से अगर जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसी तरीके से रिजर्व फंड होगा तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन फंड होगा तो, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा तो ये डेबिट, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड जो कि मैंने लिखा हुआ है डेबिट। टू किसको मिलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिखना ओल्ड रेशियो। किसमें ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में, यानी जो उनका पुराना रेशियो था, जिस रेशियो के रहते हुए ये प्रॉफिट उनको मिला था, उसी ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जर्नल एंट्री एक बार समझ लो, मैंने क्या बताया, ये सबके सब इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये लायबिलिटी बुक में से खत्म कर रहे हैं ना, मैंने क्या बताया, इस बुक से एलिमिनेट कर देना है, खत्म कर देना है, मतलब बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बुक से खत्म हो जाएगा। तो जब भी किसी लायबिलिटी को जब खत्म करेंगे, होता क्या है, क्रेडिट होता है। जब वो क्रेडिट वाला बैलेंस जब खत्म करना होगा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो वैसे जितनी हमारी लायबिलिटी होगी वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो जितना हमारी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी रहा होगा सबको हम डेबिट कर देंगे,
और बदले में किसको क्रेडिट कर देंगे। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने कहा था कि व्हेन देयर विल बी एनी प्रॉफिट और एनी बेनिफिट विल बी गिवन टू द पार्टनर, देन इट विल बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जब भी किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से अगर कुछ मिलना होगा तो उनकी कैपिटल या करंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो अब देखो ये रिजर्व का पैसा किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, अगर ए बी है तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, सी है तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक, ये तो हमारा हुआ कि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो, और ये किस साइड में दिया होगा, लायबिलिटी साइड में दिया होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि पार्टनरशिप फॉर्म में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कुछ लॉस का भी पोर्शन हमारे बैलेंस शीट में दिया हो सकता है। तो लॉस होगा तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि लॉस को भी जब अभी नहीं बांटेंगे, फ्यूचर में जाकर के जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नए रेशियो से करना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम ए ऑब्जेक्शन करेगा, प्रॉफिट के केस में तो बी ऑब्जेक्शन कर रहा था, फ्यूचर में जाके ए ऑब्जेक्शन करेगा कि लॉस का पोर्शन मुझे ही ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों लॉस ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, जबकि ये तो लॉस तभी हुआ था जब हम लोग इक्वल के पार्टनर थे। तो अगेन वही है कि बेटर है कि हम लोग पहला मेथड यूज कर लें कि जब जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट, सॉरी जिस दिन रेशियो नया रेशियो चेंज कर रहे हैं उसी दिन लॉस हो तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब लॉस के केस में क्या जनरल एंट्री होगी, जस्ट रिवर्स एंट्री होगी। लॉस के केस में पार्टनर को नुकसान होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जहां जहां पार्टनर से लेना होगा पैसा या पार्टनर को लॉस सफर करना होगा, पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा। और जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या क्या आएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इट विल बी इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द चैप्टर्स, फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। इसलिए ध्यान से देखना इस ट्रीटमेंट को, क्योंकि यही सारा सेम ट्रीटमेंट एडमिशन के टाइम में भी होना है, रिटायरमेंट के टाइम में भी होना है, डेथ के टाइम में भी होना है। तो एक बार स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ लोगे तो यही हमें आगे के 3 चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अच्छे से समझना। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस। अब एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या होगा, इसमें भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बट ये हमारा क्या दिया होगा, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर दिया रहेगा तो हम ये समझेंगे क्या, ये नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या नेट लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं डेबिट साइड बड़ा आता है तो हमारा क्या आता है, नेट लॉस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब नेट लॉस। ठीक है, लॉस होगा। इसी तरीके से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो सकता है, या इसी तरीके से इसी की जगह पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह पे हमें क्या दिया हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, और ध्यान रखना ये हमें किस साइड में मिलेगा, एसेट साइड में। अगर बैलेंस शीट दिया होगा बना करके, बैलेंस शीट नहीं दिया तो बस ऐसे ही लिखा रहेगा, हम समझ जाएंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्यूमुलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हमारे एसेट साइड में पहले जो जितने मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और इसी तरीके से रिजर्व के लिखे थे वो बैलेंस शीट में कहाँ मिलेंगे, किस साइड में मिलेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में मिलेंगे, बिकॉज दैट आर द इंटरनल लायबिलिटीज। तो ये जितने भी लॉस होते हैं, अब इसी तरीके से जैसे मान लो ये लॉस हो गया, अभी प्रॉफिट को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ये एंट्री पास किया था, तो लॉस, अब ये हमारा क्या है, बिजनेस का लॉस है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में यही क्या एंट्री होगी, रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज नाउ पार्टनर विल हैव टू सफर लॉस। पार्टनर को जब भी लॉस होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, या करेंट अकाउंट का डेबिट होता है, हम लोग पहले चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं। इसी तरीके से अब ये चूंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा होता है तो इसको जब कैंसिल करेंगे, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है ना, तो अगेन व्हेन दीज आइटम्स विल हैव टू बी कैंसिल्ड फ्रॉम द एसेट साइड, देन इट विल हैव टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि ऑलरेडी ये डेबिट होता है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। ठीक है, या इसके बदले में क्या दिया हो सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी दिया रहेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना, ये हमारी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बताया कि जब भी पीएसआर चेंज होगा तो पीएसआर चेंज होने की वजह से अगर फ्यूचर में जाकर के हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो सकता है किसी पार्टनर को गेन होगा, किसी पार्टनर को लॉस होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, जिस रेशियो में रहते हुए ये प्रॉफिट लॉस हुआ था उसी रेशियो में उसको पहले दिन क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे। उसके बाद अब जाकर नए पीएसआर से बिजनेस करेंगे और फ्यूचर में जो भी उनको प्रॉफिट लॉस होगा, नाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट इन देयर न्यू रेशियो। और उस केस में किसी पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही पीएसआर चेंज हो चुका है, ठीक है ना, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और बाद में प्रॉफिट लॉस होता है तो वो उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। और इसी तरीके से अब इस मेथड को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है ना, अब इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम जनरल एंट्री और इस एग्जांपल की करना है तो ये क्या है, जनरल रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है। तो जनरल एंट्री यहाँ पे क्या होगी, जनरल एंट्री इसके अकॉर्डिंग ही होगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो कितने पार्टनर थे, 2S कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मैंने लिखा था यहाँ पे किस रेशियो में, इसमें भी यही होता है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो में जब 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 टू एस कैपिटल 50,000 क्रेडिट साइड में, 2B's कैपिटल 50,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन या जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट केस में ये होता है। इसके बाद यानी इसको नोट करना, ये हमारा यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब रिजर्व या प्रॉफिट का करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि पार्टनर अगर चाहे तो पहले दिन डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दे। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, उसके लिए क्या होता है, अब सपोज दैट जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व क्यों क्या है, जनरल रिजर्व क्यों बिजनेस में बनाया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जाकर के कभी बिजनेस को जरूरत पड़ सकती है। मतलब जनरल रिजर्व आर रिजर्व्स आर टू बी रिजर्व्स आर क्रिएटेड इन बिजनेस जस्ट टू मेंटेन जस्ट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, जनरल रिजर्व प्रोवाइड करते हैं। यानी जिस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होता है उस ईयर से रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जाकर के बिजनेस उसी अमाउंट से एक्सपैंड होता है या फिर कभी अननेसेसरी या इसी तरीके से कोई अनसर्टेन लॉस होता है तो उस चीज को रिकवर करने के लिए क्या है, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड के पैसे को यूज किया जाता है। अब उस केस में अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट ये अपना पीएसआर चेंज करे, ठीक है, अब सेकंड इसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, पीएसआर चेंज हुआ, उसके बाद उस केस में वही रिजर्व उन का 1 लाख रुपीज था, ठीक। लेकिन पार्टनर्स आपस में ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारा जनरल रिजर्व का जो पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नियर फ्यूचर में उनको इस जनरल रिजर्व की पैसे की जरूरत पार्टनरशिप फॉर्म को पड़ जाए। तो नाउ इन दैट केस पार्टनर्स विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व अमाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगेन वही प्रॉब्लम आएगी जहां से मैंने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और अपना पीएसआर चेंज कर देंगे तो जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को ज्यादा मिल जाएगा और इसी तरीके से बी को क्या है, नए रेशियो के अकॉर्डिंग कम अमाउंट इसमें से मिलेगा, ठीक है। वहां पे फिर बी का ऑब्जेक्शन वही आएगा कि मुझे भी, चूंकि ये प्रॉफिट या जनरल रिजर्व उस टाइम के प्रॉफिट में से निकाला गया जब हमारा रेशियो इक्वल था, इसलिए ये 1 लाख रुपीज हमें इक्वल बंटना चाहिए। लेकिन जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस ईयर उस करंट पीरियड का जो भी पीएसआर होता है उसी में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये उसी 60-40 में बटेगा,
तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो पार्टनर्स कहेंगे कि ठीक है ना, इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी तो है, हम इस 1 लाख रुपीज को बिजनेस में छोड़ देते हैं, ठीक है, और आज ही हम कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होने पे इसमें किस पार्टनर को गेन हो सकता है, किस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो सकता है, ठीक है। जिसको फ्यूचर में बढ़ने पे जितना गेन होना है, आज उतने से उसका कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी पार्टनर की कैपिटल से या किसी भी पार्टनर को डेबिट करने का मतलब क्या होता है कि उस पार्टनर से उतना पैसा ले लिया गया। इसी तरीके से अगर आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूट करके हम देखते हैं या प्रॉफिट लॉस का वैल्यूएशन करके देखते हैं, तो लगता है कि बी को क्या है, कितने का लॉस होगा, बी को 10,000 रुपीज का क्या है, लॉस हो रहा है, क्योंकि इसको 50,000 मिलना चाहिए इक्वल रेशियो के अकॉर्डिंग, इसको 10,000 का लॉस हो रहा है, जबकि इसको 50 का बजाय कितना मिलेगा फ्यूचर में, 60 मिलेगा, यानी 10,000 को इसको फ्यूचर में गेन हो जाएगा। तो इसी के लिए हम जनरल एंट्री क्या पास कर लेते हैं, अब ए को गेन हो रहा है तो ए का एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, बीज कैपिटल अकाउंट, बी को कितने का नुकसान हो रहा है, 10,000 का, तो अभी से उसको 10,000 क्रेडिट कर दीजिए। इसके बाद क्या है, एज कैपिटल 10,000, यानी अभी से क्या है, ए के पैसे, ए के कैपिटल से उतना पैसा निकाल लिया गया और बी को 10,000 रुपीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया। फ्यूचर में अब जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्यूचर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, अभी मैं ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एंट्री मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यही एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे अभी लास्ट मेथड में मैंने बताया था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर को मिलेगा, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको मिलेगा 60,000, इसको मिलेगा 40,000। अब देखो बटेगा उस टाइम तो उसी रेशियो में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी बी का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट किया जा चुका है, तो 10,000 का रेशियो चेंज करते टाइम इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया, 10,000 अभी इसको क्रेडिट हो गया, 40,000 फ्यूचर में क्रेडिट हो जाएगा, तो मिला के इसका 50,000 क्रेडिट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से इसको फ्यूचर में 60,000 तो क्रेडिट किया जाएगा, बट ऑलरेडी इसका 10,000 रुपीज डेबिट किया जा चुका है, तो मतलब क्या हुआ कि किसी को 60,000 बाद में हम दे रहे हैं, उससे पहले 10,000 ले चुके हों, तो मतलब क्या है कि हमने 50,000 ही उसको दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड हमारा जो मेथड बनेगा दैट इज टू एडजस्टमेंट, टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ठीक है ना, दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट, तो उस मेथड का नाम हमारा क्या बनेगा। इस क्वेश्चन को समझ चुके होगे। अच्छा एक चीज और, यहाँ तो हमने अमाउंट निकाल करके देख लिया था, लेकिन जब क्वेश्चन का हम प्रोसीजर करेंगे तो ऐसे नहीं करना होगा। क्वेश्चन प्रोसीजर में हमको क्या करना होगा, अगेन वही हमारा ओल्ड पीएसआर है, न्यू पीएसआर है, हम जैसे निकालते थे सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, तो देखेंगे किस पार्टनर का कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, किस पार्टनर का कितना गेनिंग पोर्शन आ रहा है। जनरल रिजर्व में से उतना ही पार्ट निकाल करके एंट्री में डेबिट और क्रेडिट करेंगे, जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट में एडजस्टमेंट एंट्री पास किया, जस्ट सेम वही काम करना है, हमें ये काम करना होगा, ठीक है। तो इसका कंबाइंड एंट्री क्या बनती है, ये तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन बना करके समझा दिया। तो जब जनरल रिजर्व का पार्ट होगा, यानी प्रॉफिट का पोर्शन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको लिख लो प्रॉफिट, या इसी तरीके से रिजर्व होने के केस में हमको क्या एंट्री पास करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, एकुमुलेटेड लॉस अगर होगा, एकुमुलेटेड लॉस में क्या क्या आएगा, वही डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसी तरीके से हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर लॉस होगा तो लॉस के लिए यही रिवर्स एंट्री पास होगी। क्या एंट्री पास होगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, इसमें भी वही है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। बस एक ही एंट्री पास करना होगा। इसी तरीके से तो इस मेथड का नाम क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। इस सेकंड मेथड में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है।
लिखना व्हेन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या जब इसको बुक से खत्म नहीं करना है तो बुक में ऐसे ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, उसका एडजस्टमेंट अमाउंट रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑलरेडी वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, इसको नोट कर लेना है। हमारा फर्स्ट मेथड बनेगा, ये हमारा सेकंड मेथड बनेगा। इसमें हमको क्या करना है, जनरल प्रॉफिट के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, लॉस के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। सेकंड मेथड में हमको क्या करना है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, ये जनरल रिजर्व है 1 लाख का। इसी तरीके से हमारा क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस। ये भी हमारा 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से और क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, सपोज दैट ये भी हमारा 20,000, ये 30,000, ठीक है। 30,000 ऐसे बोल रहा है कि ए बी दो पार्टनर हैं, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर पीएसआर इक्वली, ठीक है। बाद में लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू हैव देयर पीएसआर इन 3:2 and at that time they were having reserve of rupees 1,50,000 rupees of profit and loss and they were having advertisement suspense of rupees 30,000। पास एडजस्टमेंट एंट्री, या इसी तरीके से कहेगा कि कंप्लीट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन दीज आइटम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उस केस में, यानी सेकंड मेथड बनेगा, उस केस में जर्नल एंट्री एक ही एंट्री पास होगी, या तो ये पास होगी या तो ये पास होगी। अब इस केस में हम देखेंगे कि दो तो प्रॉफिट का पोर्शन है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, लॉस का पोर्शन होता है। तो हम देखेंगे 1,50,000 में से 30,000 गया, तो इसका मतलब क्या, कितना बच गया, ये 1,20,000। अब ये पॉजिटिव अमाउंट क्या है, प्रॉफिट वाला है ना, तो 1,20,000 अगर बच रहा है तो 1,20,000 के लिए ये एंट्री पास करेंगे, यानी प्रॉफिट वाली एंट्री पास करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा है। यही मान लो कि अगर यही लॉस का अगर अमाउंट 150 हो जाए और प्रॉफिट वाला अमाउंट 30,000 दिया है, तो जो हमारा नेट अमाउंट आएगा वो क्या, नेगेटिव अमाउंट होगा 1,20,000, यानी लॉस वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा। यहीं पे मान लो जनरल रिजर्व हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारा 10,000 हो जाए, 10,000, तो उस केस में क्या है, -20,000 बचेगा। लॉस वाला अमाउंट ज्यादा है तो लॉस के लिए एंट्री क्या करेंगे, ये एंट्री पास करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पोर्शन कैसे निकालते हैं वो लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं, वैसे ही निकालेंगे। और उतने का ही, जैसे मान लो किसी पार्टनर का 1/5 का गेन है तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 जो आएगा वही गेनिंग पोर्शन गेनिंग में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब सीधे हम बुक का क्वेश्चन देखते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। दे डिसाइडेड, अब सीधे क्वेश्चन लिखते टाइम हम पढ़ते टाइम इसको लिखेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी जाएगी, बट ये कि ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक ना। और मैं चाहूंगा कि एक ही वीडियो में ये टॉपिक क्लियर हो जाए। कह रहे पी क्यू एंड आर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 24A। देयर वेर पार्टनर पी क्यू एंड आर, ठीक है। देयर PSR इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2:3:4, ठीक है। कह रहे दे डिसाइडेड लेटर टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में जाकर के, यानी न्यू PSR क्या डिसाइड कर रहे हैं वो, इक्वली मीन्स 1:1:1। अब इसके लिए कह रहा है कि ऑन दैट डे दे हैड ₹13,500 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में कितना था,
सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है तो हम प्रॉफिट ही मानेंगे इसको। कितना था? 13,500। इसी तरीके से एंड 9,000 इन रिजर्व फंड, ठीक है ना। रिजर्व फंड में कितना था? 9,000 रुपीज था, ठीक है। अब ध्यान रखना ये दो आइटम था, तो दो आइटम के लिए या तो पहला ऑप्शन हो सकता है कि इसको बांट करके डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है ओल्ड रेशियो में, या इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोलेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। दोनों केस दिया हुआ है। पहले केस में बोल रहा है दे डिसाइड टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फंड, ठीक है ना। कह रहा है पास जर्नल एंट्री व्हेन दे डिसाइड टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फंड। रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं। तो खत्म करना चाहते हैं तो पहला मेथड हुआ ना ये, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी एंट्री पहले मेथड के हिसाब से। अब ये हमारा प्रॉफिट का पोर्शन है ना, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के पोर्शन में मैंने क्या एंट्री लिखवाया है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को गेन हो रहा है। पार्टनर को गेन होगा तो क्या होगा? पार्टनर्स को जब गेन होगा तो पार्टनर्स को गेन उनके ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स को क्रेडिट होता है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसी तरीके से रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। ये है 13,500 और ये हमारा है 9,000, ठीक है। जर्नल एंट्री में क्रेडिट क्या होगा? टू सारे पार्टनर्स होंगे, टू पीस। अब पार्टनर की फिक्स कैपिटल नहीं बोल रहा है तो सीधे टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? मैं याद होगा मैंने ओल्ड रेशियो लिखा था, तो ओल्ड रेशियो कितना बन रहा है? 2, 3, 4, तो 4, 3, 7, 7 और 2, 9। तो ये टोटल हमारा कितना अमाउंट हो रहा है? कितना अमाउंट टोटल था 22,500, यानी डेबिट साइड में टोटल 22,500 है। इसको टोटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR में, ठीक है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 22,500। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P का हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का होगा। इसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। अब मिला करके टोटल जो भी हमारा 22,500 हो गया, ठीक है। 22,500 हो गया, ठीक। बस इतना ही है। पहले केस में इतना ही है कि जो हमारा प्रॉफिट लॉस था डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, इस केस में अगर कोई लॉस भी दिया होता, जैसे मान लो इसमें दिया होता कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो प्रॉफिट के लिए अलग एंट्री कर लेते। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या करते? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। उसको भी ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट कर देते। इसका सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड के हिसाब से भी क्वेश्चन को करना है। बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। पास जर्नल एंट्री when firm does not want to close the account of accumulated profit and reserve। कह रहा है कि जर्नल एंट्री पास करिए जब फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड को क्लोज नहीं करना चाहती हो। तो क्लोज नहीं करना है तो मतलब बुक में से ही पड़ा रहेगा। बुक में से ही पड़ा रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे ना, सेकंड मेथड बनेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैंने प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पोर्शन निकालना। तो कैसे निकालेंगे? पीस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो क्योंकि पता नहीं है कि सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका हो रहा है 2/9 माइनस न्यू रेशियो 1/3, ठीक है ना। 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस ये कितना हो गया? -1/9। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो क्या हो गया? गेन हो गया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, नेगेटिव वैल्यू मतलब गेन। क्यूज सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ये हमारा 3/9 माइनस इसका भी क्या है? न्यू में 1/3, 9 हो जाएगा। 3 - 3
तो क्या हो गया 0/9। तो इसने मतलब न्यू रेशियो जब बना है तो न इसको कोई सेक्रीफाइस हुआ न कोई गेन हुआ। तो न सेक्रीफाइस हुआ तो न तो क्रेडिट होगा और गेन नहीं हुआ तो डेबिट भी नहीं होगा। तो इसकी एंट्री करना ही नहीं पड़ेगी। आर्स अब तो एक चीज क्लियर हो गई है कि जब बीच वाले को कुछ नहीं है तो इसने जितना गेन किया होगा तो वही आर सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि पी को कहाँ से मिलेगा, आर से ही मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 4/9 माइनस इसका भी न्यू कितना है 1/3, 9 एलसीएम हो गया। तो 4 - 3 3। अब ये पॉजिटिव आ रहा है 1/9, तो मतलब क्या है सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना। 1/9 का सेक्रीफाइस कर रहा है आर और 1/9 का गेन कर रहा है पी। इसके लिए जर्नल एंट्री अब क्या है, यहाँ पे हम वर्किंग नोट में लिख भी सकते हैं। टोटल हमारा कितना हो रहा है 20। अब इसके लिए एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी, तो लिखेंगे पीज शेयर ऑफ गेन, क्योंकि पी गेन कर रहा है, पी शेयर ऑफ गेन। टोटल हमारा हो रहा है 22,500 मल्टीप्लाइड बाई कितने का गेन हो रहा है 1/9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 2500 कितना आ गया 2500। ऐसे इसका लिख देंगे आर्स शेयर ऑफ सेक्रीफाइस, ये भी वही आएगा, ठीक है ना। 22,500 का 1/9। जनरल एंट्री क्या पास होगी हमारी, जो भी गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर कौन है पी है, तो लिखेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि नो सेक्रीफाइस नो गेन, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पी को क्यू को अगर आज भी बांटेंगे तो भी वही मिलेगा, फ्यूचर में बांटेंगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग तो भी उसे कोई लास्ट गेन होना नहीं, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी, सीधे आएगा 2,500। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर में बटेगा, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं करते फ्यूचर में बटेगा ये प्रॉफिट, तो इस केस में क्या होगा, पी को 2500 एक्स्ट्रा मिल जाता, इसलिए उसको आज डेबिट करके खत्म कर दिया गया। आर को 2500 कम मिलता फ्यूचर में बटने पे, इसीलिए आज आर को पहले ही 2500 रुपया दे दिया गया। समझ में आया। एक आंसर चेक करते हैं, आंसर में एडजस्टमेंट एंट्री यही दिया है, हाँ यही दिया है। डेबिट पी को दे रखा है 2500 और क्रेडिट आर को दे रहा है 2500, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। अब एक क्वेश्चन मैं बस ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे तो बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 भी बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार बस डिस्कस करते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर हमारा न तो रिजर्व होता है न तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पोर्शन होता है, तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एसेट साइड में क्या दिया, फिक्स्ड एसेट दिया है, करंट एसेट दिया है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, लॉस होता है, ध्यान रखना। अब कह रहा है पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, फ्यूचर में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल वाज वैल्यूड एट 27,000। दे डिसाइडेड नीदर टू रिकॉर्ड गुडविल इन द बुक्स नॉर विश टू चेंज एनी आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि न तो वो 27,000 का गुडविल रिकॉर्ड करना चाहते हैं बुक में, गुडविल रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में परचेज गुडविल होती नहीं है, ये क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो इसका सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यही एंट्री पास करके गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। लेकिन इसी तरीके से कह रहा है कि और भी जितनी चीजें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है उस चीज को कह रहा है कि बैलेंस शीट में कोई भी आइटम ये चेंज नहीं करना चाहते हैं। चेंज नहीं करना चाहते हैं का मतलब कि वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दिया है उसको भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो मतलब क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी तो एंट्री तो बस यही एक पास होगी। अब उसमें देखो क्या करना होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ दिया है 25,000, ठीक है। गुडविल भी हम बांटेंगे, गुडविल के लिए भी यही एंट्री होती है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है कैलकुलेट करके 27,000। इसी तरीके से एक अमाउंट हमारा लॉस का दिया हुआ है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
कितना दिया हुआ है 7000, ठीक है, नेगेटिव है। तो 25,000 27,000 ये हमारा कितना हो जाएगा 52,000। अब 52,000 में से 7,000 हटा देंगे, यानी 52,000 में से 7,000 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। तो 45,000 नेट हमारा जो आएगा, ठीक है ना। 45,000 के लिए हम क्या करेंगे, इसी 45,000 का निकालेंगे पार्टनर्स का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ओल्ड न्यू रेशियो दिया हुआ है। जितना पोर्शन गेन आएगा उसी 45,000 का उतना गेन निकाल करके डेबिट करेंगे। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसी 45,000 का उतना अमाउंट निकाल करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत कम दे रखा है, ठीक है ना। इसमें कुछ और चीजें हैं जिसको डिस्कस करना है, नहीं होगा तो मैं किसी और बुक का क्वेश्चन भी तुम लोग को शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन को भी करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इसमें 2 मेथड हमने पढ़ा, ट्रीटमेंट रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को 2 तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। एक तो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, दूसरा जब डिस्ट्रीब्यूट न करे उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करें, यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाए, ठीक है। अब इसको होमवर्क करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।